بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ قومی شاہراہ پر رحیمیہ خان کے قریب گیس باؤزر میں لیکیج۔ ترجمان موٹر وے پولیس کا کہنا ہے کہ گیس باؤزر سے گیس کا اخراج جاری ہے۔ گیس باؤزر میں 29,000 لیٹر گیس موجود ہے، جبکہ موٹر وے پولیس کا کہنا ہے کہ موٹر وے پولیس افسران نے گیس لیکیج دیکھ کر ٹریفک کو روک دیا ہے۔ ٹریفک کے بہاؤ کو متبادل راستوں پر موڑ دیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ قومی شاہراہ پر رحیمیہ خان کے قریب گیس باؤزر میں لیکیج ہوئی۔ ترجمان موٹر وے پولیس کا کہنا ہے کہ گیس باؤزر سے گیس کا اخراج جاری ہے۔ گیس باؤزر میں 29,000 لیٹر گیس موجود ہے، جبکہ موٹر وے پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ موٹر وے پولیس افسران نے گیس لیکیج دیکھ کر ٹریفک کو روک دیا ہے۔ ٹریفک کے بہاؤ کو متبادل راستوں پر موڑ دیا گیا ہے۔ اور سرائے کی عوام کورونا وائرس پر بھاری پڑنے لگی۔ ملتان میں تبلیغی جماعت کے 22 ارکان نے کورونا وائرس کو شکست دے دی۔ نیو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں 24 میں سے 22 مریضوں کی پہلی رپورٹ منفی آ گئی۔ جنوبی پنجاب کے شہری کورونا کو شکست دینے لگے۔ ملتان نیو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں زیر علاج 24 تبلیغی جماعت کے اراکین میں سے 22 اراکین کی پہلی رپورٹ نیگیٹو آ گئی۔ محکمہ صحت حکام کے مطابق تمام مریضوں کے آج دوبارہ ٹیسٹ کرائے جائیں گے۔ 24 گھنٹوں میں دوسری نیگیٹو رپورٹ آنے پر مریضوں کو ڈسچارج کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ عبدالی مسجد، قرنطینہ اور شجاع آباد سے 24 افراد کو کورونا پازیٹیو آنے پر 2 ہفتے قبل نیو ڈی ایچ کیو اسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ رحیمیہ خان میں زیر علاج کورونا وائرس کے مریضوں کی صحتیابی کی اچھی خبر سامنے آ گئی۔ کورونا وائرس کے زیر علاج 10 مزید مریضوں میں کورونا وائرس کا پہلا ٹیسٹ منفی آ گیا۔ پہلا ٹیسٹ منفی آنے والوں کی تعداد 13 ہو گئی۔ رحیمیہ خان میں 770 ٹیسٹ منفی آ چکے ہیں۔ کورونا وائرس کا شکار مریضوں کی دوسری رپورٹ منفی آنے پر ان کو گھر بھیج دیا جائے گا۔ مظفر گڑھ میں کورونا کے 101 مریض صحتیاب اور 74 باقی رہ گئے۔ ڈپٹی کمشنر امجد شعیب ترین کا کورونا بارے اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ مظفر گڑھ میں ابھی تک کوئی بھی پیرامیڈیکل سٹاف کورونا سے متاثر نہیں ہوا۔ تمام ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل سٹاف کو کورونا کے مریضوں کے علاج کے بارے میں خصوصی تربیت فراہم کی گئی ہے۔ 881 تبلیغی جماعت کے اراکین کا کورونا ٹیسٹ نیگیٹو آنے پر گھروں میں بھیج دیا گیا۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے کورونا وائرس کا مقابلہ کرنے والے ڈاکٹرز کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ اپریل سے ہر مہینے انہیں ڈبل تنخواہ دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا ٹویٹ میں کہنا تھا کہ الحمدللہ ڈیرہ غازی خان میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والے تمام 12 ڈاکٹر صحتیاب ہو چکے ہیں۔ ملتان نشتر اسپتال کے 27 میں سے 26 ڈاکٹر مکمل صحتیاب ہو چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا مزید کہنا تھا کہ ہم اپنے فرنٹ لائن پر لڑنے والے ورکرز کو سلام پیش کرتے ہیں، جبکہ اپریل سے ہر مہینے انہیں ڈبل تنخواہ دی جائے گی۔ کورونا وائرس سے بے روزگار ہونے والوں کے لیے پنجاب حکومت کا احسن اقدام۔ آئندہ مالی سال میں 150 ارب روپے کا پنجاب روزگار پروگرام شروع ہوگا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے کورونا وائرس کی وجہ سے جہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کے بے روزگار ہونے کا خدشہ ظاہر کیا، وہیں اب پنجاب حکومت نئے مالی سال کے بجٹ میں پنجاب روزگار پروگرام کے لیے 150 ارب مختص کرنے جا رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق پنجاب میں کورونا وائرس کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ بے روزگار ہو چکے اور بے روزگار افراد کو ٹیپٹا کے ذریعے روزگار فراہم کیا جائے گا۔ حکام کے مطابق ہنرمند کے ساتھ ساتھ نا تجربہ کار افراد کو بھی اس روزگار پروگرام میں شامل کیا جائے گا اور نوجوانوں کو موبائل سسٹم کے تحت ماہانہ تنخواہ بھی دی جائے گی۔ بہاولپور سمیت پنجاب بھر میں محکمہ تعلیم کا بڑا فیصلہ، انتظامی پوسٹوں پر تعینات 55 سال سے زائد عمر کے افسران کو ریٹائرڈ کر دیا جائے گا۔ محکمہ تعلیم نے تمام افسران کا ڈیٹا مانگ لیا، اس کے لیے خصوصی فارم بھی تشکیل دے دیا۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے انتظامی پوسٹوں پر تعینات 55 سال سے زائد عمر کے افسران کو فارغ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسکول ایجوکیشن نے انتظامی پوسٹوں پر تعینات افسران کا سروس ریکارڈ بھی مانگ لیا ہے۔ ضلعی انتظامیہ پوسٹوں پر 3 سال سے زائد عرصہ دراز سے تعینات افسران کو بھی تبدیل کر دیا جائے گا۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن، سی اوز، ڈی اوز، ڈپٹی ڈی اوز، ای اوز اور ایم ایز انتظامی پوسٹوں پر تعینات ہیں۔ انتظامی پوسٹوں پر تعینات مذکورہ افسران کو اپنا سروس ریکارڈ پرفارما جمع کرانا ہوگا۔ افسران سے سروس ریکارڈ کے حصول کے لیے پرفارما تیار کر لیا گیا ہے۔ پرفارما کی کاپی صوبہ بھر کی اتھارٹیز کو ارسال کر دی گئی ہے، جس پر ضلع اندراج کے ساتھ افسران کے دستخط اور انگوٹھے کا نشان بھی ثبت کرنا لازمی ہوگا۔ کورونا وبا کے سبب ہونے والے لاک ڈاؤن سے کاروبار بند اور ٹیکس وصولیاں معطل ہونے سے مالی بحران بڑھنے لگا۔ پنجاب میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر کام روکنے کا فیصلہ، ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ترقیاتی فنڈز شعبہ صحت سمیت دیگر فوری ضروریات پر خرچ کیے جائیں گے۔
फंड्स के इजरा पर पाबंदी आयद कर दी गई है। आइंदा से अब किसी मंसूबे और महकमे को तरक्याती फंड्स जारी नहीं होंगे। पीएनडी बोर्ड के जराये ने बताया है कि तरक्याती मंसूबों के लिए मुख्तलिफ मौजूदा फंड्स अब दीगर इंतजामी मामलात पर खर्च होंगे और मुख्तलिफ मंसूबों के लिए मुख्तलिफ फंड्स अब ज्यादातर हेल्थ सेक्टर को मुंतकिल होंगे। जराये ने बताया है कि 50 अरब रुपए से जायद का तरक्याती फंड अभी महकमा पीएनडी के पास मौजूद है, जबकि मज़कूरा फंड्स अब हुकूमती अहकामात पर नॉन डेवलपमेंट सेक्टर को जारी होंगे। हुकाम का कहना है कि कोरोना वायरस की वबा से मौजूदा बजट में महसूलात में कमी और अखराजात में इजाफा हुआ। मुल्क भर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 10 रोज में दुगना हो गई है। वजीर आजम कहते हैं कि मई के महीने में कोरोना वायरस जोर पकड़ेगा। मुल्तान के तमाम अस्पतालों समेत रेलवे अस्पताल इंतजामिया भी हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार है। माहिरीन और हुकूमत का कहना है कि मई का महीना कोरोना वायरस के फैलाव के हवाले से मुल्क के लिए मुश्किल हो सकता है। ऐसे में हंगामी बुनियादों पर तैयारी रखी जाए, जिसके बाद रेलवे अस्पताल मुल्तान हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार कर लिया गया। रोही से गुफ्तगू करते हुए एमएस रेलवे अस्पताल डॉक्टर उतलस खान का कहना था कि मुल्तान रेलवे डिवीजन अस्पताल में 50 बिस्तर का आइसोलेशन वार्ड कायम है। डॉक्टर उतलस खान का कहना है कि मुल्तान रेलवे अस्पताल का अमला और डॉक्टर्स हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार हैं। आइंदा 3 माह कोरोना वायरस के हवाले से अहम है। अवाम लॉकडाउन पर अमल दरामद करें। रेलवे अस्पताल ने बोगियों में भी आइसोलेशन रूम्स बना दिए हैं। अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर भी मंगवा लिए गए हैं। आपको बताएं कि बहावलपुर में एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत रकम की तरसील का मामला। बहावलपुर में 8171 से रकम वसूल करने का एसएमएस आने के बावजूद भी ख्वातीन को रकम नहीं मिल रही। एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत रकम की तरसील के मामले पर शहरियों को मुश्किलात का सामना होने लगा। बहावलपुर में 8171 से रकम वसूल करने का एसएमएस आने के बावजूद भी खवातीन को रकम नहीं मिल रही। सैकड़ों खवातीन मोबाइल एसएमएस लिए दरबदर हैं। इंतजामिया का कहना है कि सेंटर पर आने वाली सैकड़ों खवातीन को 8171 से एसएमएस मौसूल हो रहा है, लेकिन शनाख्ती कार्ड रजिस्टर नहीं होता। हुकूमत पाकिस्तान ने 17 अप्रैल तक आने वाले ज्यादातर एसएमएस का डाटा रोक लिया। अब इशू ये आ रहा है कि जिन लोगों को 14, 15, 16, 17 तक के मैसेजेस आए हैं, उनमें से चंद लोगों को पैसे मिल रहे हैं, बाकी लोगों के यहाँ पे नॉट रजिस्टर्ड आ रहा है, जिसका हमने इतला एसी साहब को और जो मुतल्लिका इंतजामिया है बिस्प की उसको और जो कनेक्ट के इंतजामिया है उनको हमने ये इतला दे दी है और उम्मीद है कि इस इशू पर काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द इशू रिजॉल्व हो जाएगा। सेंटर पर मौजूद अमले का कहना है कि मकामी इंतजामिया ने तमाम मामला हुकूमत को बता दिया है। खदशा है कि एहसास प्रोग्राम के पहले मरहले में रकम वसूल करने वाली खवातीन ने भी 8171 पर एसएमएस किए थे। बहुत सी ऐसी खवातीन सामने आई हैं जो पहले मरहले में रकम वसूल करने के बाद दोबारा भी रजिस्टर्ड हो चुकी हैं, इसीलिए मशकूक डाटा रोका गया है। इंतजामिया का कहना है कि तमाम तर सूरत हाल से हुकूमत आगाह है, इस पर काम जारी है, बहुत जल्द मसला हल हो जाएगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि मसाजिद और इमाम बारगाहों से कालीन और दरियां हटाकर फर्श पर नमाज पढ़ी जाएगी। नमाजियों के दरमियान 6 फुट का फासला रखा जाए। बुजुर्गों, बीमारों और बच्चों पर पाबंदी होगी, जबकि नमाज और तरावी के लिए एसओपीज पर अमल दरामद यकीनी बनाने का फैसला किया गया। और इमाम बारगाहों से कालीन और दरियां हटाकर फर्श पर नमाज पढ़ी जाए। नमाजियों के दरमियान 6 फुट का फासला रखा जाए। बुजुर्गों, बीमारों और बच्चों पर पाबंदी होगी। नमाज और तरावी के लिए एसओपीज पर अमल दरामद यकीनी बनाने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक ने तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को उलमा से राब्ते का हुक्म दे दिया। बहावलपुर में कमिश्नर की जेर सदारत रमजानुल मुबारक से पहले उलमा कराम के साथ मीटिंग। हर मस्जिद में खुसूसी कमेटी तश्कील देकर सोशल डिस्टेंसिंग की पॉलिसी पर अमल करवाने और नमाज तरावी कालीन पर अदा करने की बजाय फर्श पर अदा करने पर इत्तफाक किया गया। कमिश्नर का कहना था कि हुकूमत के वज़ा करदा हिदायतनामे के मुताबिक मसाजिद और इमाम बारगाहों में नमाज और तरावी का एहतमाम किया जाएगा। मियांवाली पुलिस ने रमजानुल मुबारक के हवाले से सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया। डीपीओ हसन असद अलवी का कहना था कि 1000 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार ड्यूटी पर तैनात होंगे। 177 एहलकार मसाजिद और इमाम बारगाहों पर ड्यूटी देंगे। गंदम की स्मगलिंग रोकने के लिए भी 7 नाके लगाए गए हैं। रमजानुल मुबारक में डिस्ट्रिक्ट डीजी खान में मसाजिद में सिक्योरिटी के सख्त इकदाम किए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अख्तर फारूक का कहना था कि रमजानुल मुबारक में मसाजिद में सिक्योरिटी के भरपूर इंतजाम किए जाएंगे। नए तैनात होने वाले सीपीओ मुल्तान हसन रजा ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। सीपीओ का कहना है कि इंसाफ की फराहमी के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। तैनात होने वाले सीपीओ मुल्तान हसन रजा खान ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। पुलिस लाइंस में आमद पर अफसरान ने इस्तकबाल किया, जहां नए सीपीओ को पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया, जिसके बाद सीपीओ ने शोहदा महल का दौरा किया, यादगार शोहदा पर गुलदस्ता पेश किया और मुल्क की खातिर जान कुर्बान करने वालों के लिए खुसूसी दुआ की। मुल्तान मेरे लिए कोई नई जगह नहीं है।
پہلے بھی میں یہاں پہ تعینات رہا ہوں، اب دوبارہ اللہ نے موقع دیا ہے یہاں پہ آ کے اور سرو کرنے کا۔ سی پی او ملتان کا روہی سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ یہ شہر ان کے لیے نیا نہیں ہے، انصاف کی فراہمی کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ انشاءاللہ پوری دل جمی کے ساتھ کام کریں گے اور پیش نظر ایک ہی چیز ہوگی کہ انصاف کا بول بالا کریں اور مظلوم کی داد رسی کریں میرٹ کے اوپر۔ پولیس لائن میں سی پی او حسن رضا کو افسران نے بریفنگ بھی دی۔ اس موقع پر ایس ایس پی انویسٹیگیشن رب نواز اللہ، ایس پی ہیڈ کوارٹر سجاد حسین، ایس پی سٹی جاوید خان، ایس پی صدر راؤ نعیم شاہد، ایس پی کینٹ زنیرہ اصفر، ایس پی طلعت حبیب، ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر اقبال لاشاری، انچارج جے ٹی ٹی رضوان خان، انچارج ایلیٹ عبد الخالق اور محمد نوید بھی شامل تھے۔ واضح رہے کہ حسن رضا خان کو گریڈ 20 میں ترقی دے کر سی پی او ملتان کے عہدے پر تعینات کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے حسن رضا خان ڈی پی او جھنگ کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ نئے تعینات ہونے والے سی پی او حسن رضا خان ملتان میں پہلے اے ایس پی اور ایس پی کے عہدوں پر فرائض سر انجام دے چکے ہیں۔ کیمرہ مین محمد بلال کے ساتھ ماہر عمران نواز، ملتان۔ سناوا میں منشیات کیس میں خرد برد کا الزام، منشیات فروش کے ساتھی کی غیر قانونی رہائی اور 4 لاکھ روپے مبینہ رشوت لینے پر سب انسپیکٹر محمد نواز کو گرفتار کر لیا گیا۔ 2.5 کلو چرس کی بجائے 1100 گرام کا مقدمہ درج کیا گیا۔ ڈی پی او ندیم عباس کے مطابق اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے والوں کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جائے گی۔ آپ کو بتا رہے ہیں سناوا میں منشیات کیس میں خرد برد کا الزام، منشیات فروش کے ساتھی کی غیر قانونی رہائی اور 4 لاکھ روپے مبینہ رشوت لینے پر سب انسپیکٹر محمد نواز گرفتار کر لیے گئے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ کبیروالا میں گھریلو جھگڑے پر نوجوان نے فائرنگ کر کے اپنی بھابھی کو قتل کر دیا۔ ملزم موقع سے فرار ہو گیا۔ پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے تحصیل اسپتال منتقل کر دیا۔ ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ پولیس کا ایسا کہنا ہے، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ کبیروالا میں گھریلو جھگڑے پر نوجوان نے فائرنگ کر کے اپنی بھابھی کو قتل کر دیا۔ ملزم موقع سے فرار ہو گیا ہے، جبکہ پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے تحصیل اسپتال منتقل کر دیا۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ سٹی پولیس آفیسر ملتان حسن رضا خان نے پولیس لائنز ملتان میں میٹنگ کی۔ سی پی او ملتان نے ڈسٹرکٹ ملتان میں کرائم کی صورتحال کا جائزہ لیا اور افسران کو جرائم کے کنٹرول کرنے کے حوالے سے ہدایات جاری کی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ سٹی پولیس آفیسر ملتان حسن رضا خان نے پولیس لائنز ملتان میں میٹنگ کی۔ سی پی او ملتان نے ڈسٹرکٹ ملتان میں کرائم کی صورتحال کا جائزہ بھی لیا اور افسران کو جرائم کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے ہدایات جاری کی۔ اور سینئر وزیر پنجاب عبدالعلیم خان نے کہا ہے کہ گندم کی نقل و حمل کے لیے پرمٹ کے اجراء کا طریقہ کار تبدیل کر دیا ہے۔ اب جس ضلع سے گندم اٹھانی ہوگی وہاں کا ڈپٹی کمشنر این او سی دے گا۔ ایسوسی ایشن کی خبروں کے حوالے سے سینئر وزیر عبدالعلیم خان نے کہا کہ گندم کی ترسیل میں پائے جانے والے ابہام دور کر رہے ہیں۔ فلور ملز ایسوسی ایشن کے جائز تحفظات ضرور دور کریں گے۔ گندم اٹھانے اور فلور ملز والے ضلع کے مابین رابطہ یقینی بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امید ہے فلور ملز رمضان المبارک کے موقع پر ہڑتال نہیں کریں گی۔ عبدالعلیم خان نے کہا کہ گندم کی اسمگلنگ اور ذخیرہ اندوزی روکنا فلور ملز کے لیے فائدہ مند ہے۔ سیکرٹری خوراک سینئر افسران کے ہمراہ فیلڈ میں ہیں، جبکہ کل سے میں خود بھی گندم خریداری مہم کے جائزہ کے لیے جاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف موقع پر کارروائی ہوگی۔ جس ضلع میں ذخیرہ اندوزی پائی گئی وہاں ڈپٹی کمشنر ذمہ دار ہوں گے۔ سینئر وزیر کا کہنا تھا کہ پنجاب میں وافر گندم موجود ہے، مصنوعی بحران پیدا نہیں کرنے دیں گے۔ تحصیل سٹی اور صدر ملتان کے گندم خریداری مراکز پر گندم وصولی کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ 70 سے زائد مواضعات سے گندم سینٹرز پر لانے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ 1000 بوری سے زائد گندم پی آر سینٹر 1 اور 2 پر اب تک وصول کر لی گئی ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں رضا ملک۔ سٹی اور صدر ملتان کے گندم خریداری مراکز پر گندم وصولی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ 70 سے زائد موزجات سے گندم سینٹرز پر لائی جا رہی ہے۔ گندم سینٹرز پر لانے والے کاشتکاروں کی روش سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ رواں بس حکومتی اقدامات کے باعث کسانوں کے لیے آسانیاں مہیا کی گئی ہیں۔ 350 توڑا تھا، تقریباً آدھا پونا گھنٹہ لگا ہے۔ قصبہ مڈل سے لے کے آئے ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے ادھر، بازار بھی مل رہا ہے اور گندم اتارنے میں کوئی کمی پیش نہیں ہے۔ کاشتکار محمد جمیل کا کہنا تھا کہ گندم لانے اور اتارنے میں کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا۔ قصبہ مغل سے گندم سینٹرز پر لا رہے ہیں۔ فوڈ ڈپارٹمنٹ کے اہلکار ندیم عباس کا کہنا تھا کہ سینٹرز پر لائی جانے والی گندم کو نمی ناپنے والے میٹر سے چیک کیا جا رہا ہے۔ گندم کو ہم
ظاہراً بھی دیکھتے ہیں، ماسٹر میٹر بھی ہمارے پاس موجود ہے گورنمنٹ کا، اس سے ماسٹر بھی چیک کرتے ہیں، گورنمنٹ کے معیار کے مطابق اگر ہو تو ہم اسے فوری ان لوڈ کر لیتے ہیں، گوداموں میں سٹور ہو رہی ہے جی۔ سینٹر انچارج ندیم عباس کا مزید کہنا تھا کہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کی ہدایات کے مطابق 10% تک نمی والی گندم وصول کر رہے ہیں۔ سینٹرز پر وافر لیبر موجود ہے، گندم ان لوڈ کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آ رہی۔ کیمرامین محمد رضوان کے ساتھ رضا ملک، ملتان۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ میاں والی میں گندم خریداری کے لیے خوراک مراکز پر باردانہ کی تقسیم جاری ہے۔ ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر چودھری محمد توفیق نے بتایا کہ 6 مراکز پر 3 لاکھ بوری باردانہ جاری ہو چکا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں اختر مجاز۔ 6 مراکز پر گندم کی خریداری کے لیے باردانے کی تقسیم جاری ہے۔ ڈسٹرکٹ بھر میں میاں والی، پپلا، عیسیٰ خیل، سوانس، بابھوچنا اور ماڑی انڈس پر مشتمل 6 مراکز تشکیل دیے گئے ہیں، جن پر 3 لاکھ بوری باردانہ جاری ہو چکا۔ ڈی ایف سی چودھری محمد توفیق نے بتایا کہ 3 لاکھ بوری باردانہ ٹارگٹ کا 40% بنتا ہے۔ ٹوٹل ٹارگٹ 8,08,700 بوری ہے۔ ہمارا 29,360 ٹن کا باردانہ جاری ہو گیا ہے، جو کہ ٹارگٹ کا 40% ہے، اور ہمارا ٹوٹل ڈسٹرکٹ کا ٹارگٹ ہے 72,783 میٹرک ٹن۔ 6 جو سینٹر ہیں یہ سب کا ملا کے 72,783 میٹرک ٹن بنتا ہے، اور 40% ہم نے باردانہ ایشو کر دیا کل شام تک۔ میاں والی فوڈ کنٹرولر ظہور خان نے بتایا کہ فلور ملز 72 گھنٹوں سے زائد گندم کا سٹاک نہیں رکھ سکیں گے۔ 72 گھنٹوں سے زائد سٹاک پر کارروائی ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ گندم کو دوسرے صوبوں اور اضلاع سے روکنے کے 7 چیک پوسٹیں بنائی ہیں۔ ہر چیک پوسٹ پر رینجرز، پولیس اور فوڈ اہلکار موجود ہیں۔ میاں والی سینٹر کا ٹارگٹ 15,730 میٹرک ٹن ہے، جس میں سے 6,020 میٹرک ٹن کا باردانہ جا چکا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ ابھی خریداری شروع ہی نہیں ہوئی اور 38% باردانہ ڈیلیور ہو چکا ہے، تقسیم ہو گیا ہے، ٹارگٹ انشاءاللہ یقیناً پورا ہوگا۔ ٹارگٹ پورا ہونے کے بعد میاں والی میں پرائیویٹ گندم کی خریداری اور فروخت کی اجازت دی جائے گی۔ کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی۔ ادھر خانیوال میں جاری لاک ڈاؤن کے دوران بے روزگار دہاڑی دار مزدوروں کے لیے اچھی خبر آ گئی۔ گندم خریداری مراکز پر گندم آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، جس سے مزدوروں کو روزگار مل گیا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ کورونا وائرس سے بچانے کے لیے جاری لاک ڈاؤن میں جہاں کاروباری مراکز بند ہوئے ہیں، وہیں دہاڑی دار مزدور بڑے پیمانے پر بے روزگار ہوئے ہیں۔ پلے دار مزدور کہتے ہیں کہ گندم خریداری مراکز پر گندم آنے کا سلسلہ شروع ہوا تو ان کا روزگار کھل گیا ہے اور وہ اس پر خوش ہیں۔ 2 مہینے ہو گئے ہم پریشان بیٹھے ہیں جی، آج ہمارا کام شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر خیریت سے ہمارا کام نبھائے۔ مزدور کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن میں ان کی بے روزگاری کے باعث گھروں کے چولہے بجھ گئے تھے۔ اب گندم خریداری مراکز پر گندم کی لوڈنگ اور ان لوڈنگ کی مزدوری ملنے سے ان کے گھروں کے چولہے جل جائیں گے۔ ابھی پریشانی ختم ہو گئی ہے، جو مزدور طبقہ تھا ان کو جو ہے نا مزدوری جو ہے وہ کھل گئے ہیں، مزدوری کر سکتے ہیں۔ پہلے تو بے روزگار بیٹھے تھے گھروں میں، ابھی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کو جو ہے نا ملیں گے، کچھ مزدوری ملے گی اور کوئی راشن پانی لے کے آئے گا اور گھر کا نظام چلائے گا۔ مزدور کہتے ہیں کہ گندم خریداری مراکز پر ان کے روزگار کا سلسلہ 6 ماہ تک جاری رہتا ہے، جس سے ان کے معاشی مسائل حل ہوتے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد ندیم مغل، روہی خانیوال۔ رحیمیہ خان میں محکمہ فوڈ اور غلہ منڈی کی آڑھتیوں کی ملی بھگت میں ناقص گندم کی خریداری کا انکشاف ہوا۔ غلہ منڈی میں ناقص اور پرانی گندم نئے تھیلوں میں بند کر کے محکمہ فوڈ کو ہی بھجوائی جا رہی تھی۔ رحیمیہ خان میں گندم کی خریداری میں محکمہ فوڈ اپنی پرانی روش کو نہ چھوڑ سکا۔ غلہ منڈی کے آڑھتیوں کے ساتھ محکمہ فوڈ کی ملی بھگت کا سلسلہ اب بھی چل رہا ہے۔ غلہ منڈی کے آڑھتی سریعام پرانی اور ناقص گندم کو پرانے تھیلوں سے نکال کر نئے تھیلوں میں بند کر کے گندم خریداری سینٹر پر عملے کی ملی بھگت سے سپلائی کر رہے ہیں۔ غلہ منڈی کے تھڑے پر سریعام ناقص گندم کو نئے تھیلوں میں بند کر کے گندم خریداری سینٹر میں بھجوا کر سرکاری کھاتے میں ڈالی جا رہی ہے۔ محکمہ فوڈ آڑھتیوں کی ملی بھگت اور اس کی روک تھام کے دعوے کرنے والے بند کی ہوئی ہیں۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بہاولپور میں گندم خریداری مراکز پر کسانوں کو فراہم کی گئی سہولیات کا جائزہ لینے کے لیے چیئرمین وزیر اعلیٰ شکایت سیل کا خریداری مرکز کا دورہ۔ انتظامات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس سال گزشتہ سال کی نسبت گندم 15% سے زائد خریدیں گے۔ بہاولپور میں چیئرمین وزیر اعلیٰ شکایات سیل جاوید خان دولتزئی نے گندم خریداری مراکز کا دورہ کیا۔ چیئرمین نے اے ایف سی ناصر خان کے ساتھ خانقاہ شریف اور بہاولپور سٹی میں قائم مراکز کا بھی دورہ کیا۔ جاوید خان کا کہنا تھا کہ کسی بھی خریداری سینٹر پر کسانوں کی لمبی قطاریں دیکھنے کو نہیں ملی۔ یہ وہ دعوے جو ہماری حکومت نے کیے تھے، الحمدللہ اس کے ہم تکمیل کی طرف جا رہے ہیں۔ بہت آسان معاملات بنا دیے گئے ہیں۔ ایک تو ہدف پچھلے سال کی نسبت تقریباً 15% زیادہ رکھا گیا ہے۔ دوسرا، کسانوں کی سہولت کے لیے اس کی ادائیگی کا طریقہ کار بہت ہی آسان کر دیا گیا ہے۔ یعنی ایک دن آپ پیمنٹ اپنا بورے جمع کریں، دوسرے دن پیمنٹ لیں،
और इस वजह से आपको रश भी कम नजर आ रहा है। उनका कहना था कि किसानों की गंदम फौरी तौर पर वसूल करके उन्हें रकम की अदायगी की जा रही है। पहले किसान को 50 बोरी गंदम की कीमत फौरी अदा करते थे, अब 100 बोरी की कीमत अदा करते हैं। दूसरी जानिब AFC का कहना था कि जिलाबंदी के तहत अब तक 12 ट्रालियां गंदम बाहर ले जाते पकड़ी गई हैं। अब तक हमने 6 पर्चे किए हैं और 15 से 20 गाड़ियां हमने अनलोड की अपने सेंटर पे, जो बाहर जा रही थी गैर कानूनी, और अनलोड करके उनको पेमेंट हमने कर दी है। तो इसमें बहावलपुर में हमने 6 गाड़ियां, इसी तरह अहमदपुर और हासिलपुर सिटी की, वहाँ हमने 8 गाड़ियां पकड़ी थी जो अनलोड कर ली हमने सेंटर पे। AFC का मजीद कहना था कि तमाम ट्रालियों को ऑफलोड कर लिया गया है, जबकि एक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाया है। इस साल ओपन पॉलिसी पर गंदम खरीद रहे हैं, कोई भी किसान गंदम लाकर फरोख्त कर सकता है। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ तैयब सैफ, बहावलपुर। अभी आपको बताएं कि फ्लोर मिल्स का कोटा बंद होने से बैनुल अज़लाई नकलो हमल पर पाबंदी पर पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर उस्मान महमूद का कहना है कि हुकूमत कारोबारी तबके को चोर और स्मगलर करार दे रही है। हुकूमत ने मुतालबात ना माने तो फ्लोर मिल्स बंद होने, आटे के बहरान की जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब ने हुकूमत की पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाते हुए मुतालबात न मानने पर पीठ से फ्लोर मिल्स बंद करने का ऐलान किया है। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर उस्मान महमूद का कहना है कि फ्लोर मिल्स से वाबस्ता अफराद साफ शफाफ कारोबार कर रहे हैं, मगर मुल्क के अंदर आटे की सप्लाई करने पर हुकूमत चोर और स्मगलर बना रही है। मुल्क में आटे की सप्लाई करना कहाँ स्मगलिंग की ज़िम्मन में आता है। उन्होंने कहा कि कभी बैनुल अज़लाई तरसील पर पाबंदी और कभी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की जानिब से फ्लोर मिल्स में दाखिल होकर चेकिंग के नाम पर धमकाया जा रहा है। हुकूमत ने अपनी पॉलिसियों को ना बदला तो रमजानुल मुबारक में आटे के बहरान की जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। आप हमें ऑलमोस्ट डेली बेसिस के ऊपर जो हमारी वीट बाइंग है वो हमें करने दें, हमें उसमें खलल ना पैदा करें। अगर आप खलल पैदा करेंगे तो आप भी तंग होंगे, हम भी तंग होंगे। तो दूसरा ये बात है कि आपने हमारे ऊपर टीम पे टीम एक बना दी है। एक हमारे यहाँ पे जो फूड पंजाब की टीम होती है वो ऑलरेडी मौजूद होती है, आपने उसके ऊपर एक और टीम लगा दी जो हमारी मिलों में आए दिन छापे और आए दिन को मामला। देखें, हम मिलर्स हैं, हम इज्जतदार लोग हैं, आप हमारी इज्जतों को ना उछालें। और दूसरा, हम ज़ख़ीरा अंदोज़ या स्मगलर नहीं हैं। फ्लोर मिल से हुकूमत की गंदम की खरीदारी का हदम मुकम्मल न होने तक खरीदारी न करने का ऐलान किया हुआ है, मगर हुकूमत से रोजाना की बुनियाद पर महकमा फूड के कोटे का इजरा और बैनुल अज़लाई तरसील पर आयद पाबंदी को खत्म करने का मुतालबा किया जा रहा है। कैमरामैन अनवर सोहेल के साथ आसिम सिद्दीक, रोही रहमिया खान। रमजानुल मुबारक की आमद करीब होते ही जिला मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में सब्जियों की कीमतों में इजाफा होना शुरू हो गया। लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार और फाकों का शिकार लोगों की परेशानी में मजीद इजाफा दिखाई दे रहा है। तहसील अलीपुर में माह रमजान मुबारक की आमद के साथ ही सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। 30 रुपए किलो फरोख्त होने वाला आलू 70 रुपए, 50 वाला मटर 150 रुपए में फरोख्त होने लगा। 100 रुपए किलो में बिकने वाला लीमू 320 में फरोख्त होने लगा। 10 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर 30 से 40 रुपए किलो तक जा पहुंचा। भिंडी, बैंगन, तोरी और दीगर सब्जियों के रेट में 20 से 30 रुपए इजाफा हो गया। कोरोना के खतरे के पेश नजर मुल्क में लॉकडाउन की वजह से दिहाड़ीदार तबका पहले ही बेरोजगार हो चुका है। मकामी इंतजामिया और आला हुकाम को नोटिस लेकर कीमतें कंट्रोल करने की जरूरत है। सब्जियों की बढ़ती हुई कीमतों पर कहना था कि लॉकडाउन की वजह से काम बंद हो गए हैं। लॉकडाउन की वजह से गरीबों के कारोबार बंद हैं। बंद होने की वजह से यहाँ सब्जियों का रेट भी काफी ज्यादा हो गया है और गरीब आदमी की पहुंच से बहुत दूर हो गया है। इंतजामिया को चाहिए कि फौरी तौर पर ऐसी हिकमत अमली अपनाई जाए कि लोगों को सस्ती अशिया दस्तयाब हो सकें। कैमरा टीम के साथ राना इमरान सईदी, रोही, अलीपुर। दूसरी जानिब आपको बताएं कि डेरा गाजी खान में मॉडल बाजार के दुकानदारों का इंतजामिया की जानिब से किराया वसूल करने पर एहतजाज। दुकानदारों का कहना है कि गुज़िश्ता 1 माह से दुकानें बंद हैं, किराया कहां से दें। रिपोर्ट कर रहे हैं आशिर अशफाक। डेरा गाजी खान के मॉडल बाजार में इंतजामिया की जानिब से किराए वसूल किए जाने पर दुकानदारों की जानिब से एहतजाज किया गया। दुकानदारों का कहना था कि गुज़िश्ता 1 माह से लॉकडाउन के बायस उनकी दुकानें बंद हैं, घरों को चलाना मुश्किल है, किराए कहां से दे। बंद दुकानों का किराया हमसे मांग रहे हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने ऐलान किया हुआ है कि वो 2 महीने का किराया नहीं लेंगे, 3 महीने का, 2 महीने का, जितना भी है। तो इन्होंने कहा नहीं जी आपने भरना है, हमें पीछे से आर्डर है, पंजाब मॉडल बाजार मैनेजमेंट अथॉरिटी लाहौर से आर्डर है कि आप भरेंगे। इन्होंने जब हमें टेलीफोन करके घर से बुलाया नहीं कि आओ जी अपनी शॉप ओपन करें और पेमेंट हमें दें। अगर आपको पेमेंट नहीं देंगे, हम किराया नहीं हमें देंगे, आपकी दुकान कैंसिल भी कर दी जाएगी और आप यहाँ से चले जाओगे। बार बार तड़ियाँ लगाए जा रहे हैं। अगर आपने किराया नहीं भरा तो आपके स्टॉल बिल्कुल कैंसिल कर देंगे, आपके कोई यहाँ पे सामान भी नहीं देंगे और बाकी आपको यहाँ से
डिस्कनेक्ट कर देंगे बिल्कुल। दुकानदारों का कहना था कि हुकूमत की जानिब से किराए माफ करने का कहा गया है, जबकि नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था। मॉडल बाजार इंतजामिया की जानिब से किराए वसूल किए जा रहे हैं और किराया न देने वालों की दुकानें सील करने की भी धमकियां दी जा रही हैं। दुकानदारों ने मुतालबा किया कि हुकूमत तवज्जो दे और उनको रिलीफ दिया जाए। कैमरामैन अब्दुल कादिर के साथ आशिर अशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। और पंजाब फूड अथॉरिटी का ग्रैंड ऑपरेशन, मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयां। मुल्तान में मिलावटी मिर्च और चाय की तरसील नाकाम बना दी। 6000 किलो सुर्ख मिर्च, 1275 किलो गैर मियारी चाय बरामद करके दुकान सील कर दी गई। गल्ला मंडी मुल्तान में पंजाब फूड अथॉरिटी का ग्रैंड ऑपरेशन, गल्ला मंडी अहमद गुड्स ट्रांसपोर्ट से 6000 किलो सुर्ख मिर्च, 1275 किलो गैर मियारी चाय बरामद कर ली गई। 576 लीटर रूह अफ़ज़ा, 360 लीटर नेस्ले रेड ग्रेप्स और 8 कॉटन हाजमीन कैंडी मौके पर तल्फ की गई। चाय की पत्ती और सुर्ख मिर्च की तैयारी में रंग की मिलावट भी पाई गई। डायरेक्टर ऑपरेशंस शहजाद मगसी की सरबराही में लोधरा समेत जनूबी पंजाब में 210 केनाल पर काश्त सब्जियों की चेकिंग की गई। डायरेक्टर ऑपरेशंस के मुताबिक लोधरा में 168 केनाल, बहावलनगर में 24 केनाल और मुजफ्फरगढ़ में 18 केनाल जमीन पर काश्त सब्जियों की चेकिंग की गई। 42 केनाल पर सीवरेज के पानी से काश्त आलूदा सब्जियां हल चलाकर तल्फ की गईं। बहावलनगर में 24 केनाल और मुजफ्फरगढ़ में 18 केनाल पर उगाई गई आलूदा सब्जियां तल्फ की। डीजी ऑपरेशंस शहजाद मगसी का कहना है कि जहरीले पानी से उगने वाली सब्जियों में मौजूद मादे मोहलिक बीमारियों का बायस बनते हैं, जो कि तल्फ की गयी। मियां चुन्नू में असिस्टेंट कमिश्नर ज़िशान नदीम की मशरकी बाईपास पर बड़ी कार्रवाई, जाली दूध और ऑयल बनाने वाली फैक्ट्री सील कर दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर ज़िशान नदीम का कहना था कि तहकीकात कर रहे हैं फैक्ट्री किसकी है और जाली दूध और ऑयल कहां कहां सप्लाई किया जाता था। इसके साथ साथ मालिक के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उनका मजीद कहना था कि शहरियों की जान की हिफाजत करना हमारा फर्ज है, किसी को भी इंसानी जानों से खेलने की इजाजत नहीं दे सकते। आपको बताएं कि मुल्तान के ख्वाजा सरा मैदान में आ गए। अपने हुकूक के लिए ट्रांसजेंडर वेलफेयर कमेटी बना ली। अलहाज सईद नरगस को सदर मुंतखब कर लिया गया। मुल्तान के ख्वाजा सराओं ने अपनी मदद आप के तहत अपने हुकूक के लिए ट्रांसजेंडर वेलफेयर कमेटी बना ली। अलहाज सईद नरगिस को मुतफिका तौर पर मुल्तान के ख्वाजा सराओं का सदर मुंतखब कर लिया गया। इनके लिए कोई मशीनों वाला काम भी करेंगे, इनकी सिखलाई कराएंगे। इंशाअल्लाह ताला नीचे हमारा मकान है, सारे रोजगार बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। जो पहले कमेटी कोई भी नहीं बनी। ख्वाजा सरा वेलफेयर कमेटी के नायब सदर मैडम मटकी और नैन तारा को जनरल सेक्रेटरी मुंतखब कर लिया गया। कमेटी गरीब, बीमार और मुस्तहिक ख्वाजा सराओं के हकूक के लिए काम करेगी। हम लोगों ने अपनी मदद आपके तहत ये ट्रांसजेंडर वेलफेयर कमेटी मुल्तान हम लोगों ने बनाई है। महरूम जो तबका है उसमें अब आवाज उठना शुरू हो गई है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है रियलाइजेशन ऑफ राइट्स। ठीक है, जब लोगों को अपने राइट्स का खुद पता लगना शुरू हो जाएगा तो राइट्स हासिल कभी कर लिए जाएंगे। ख्वाजा सरा कम्युनिटी का कहना था कि वो पहली बाकायदा ट्रांसजेंडर वेलफेयर कमेटी बनने पर खुश है। अब इनके हकूक इनके सीनियर ख्वाजा सरा दिलवाएंगे। कमेटी में तकरीबन 60 के करीब बॉडी मेंबर्स शामिल हैं। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। आपको बताएं कि मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के चीफ ऑफिसर मोहम्मद शफीक कब्जा माफिया के खिलाफ इन एक्शन, करोड़ों रुपए मालियत की कमर्शियल दुकानों की जगह वागुजार करा ली। भावलपुर की मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन अमीर तरीन मेट्रोपॉलिटन में से एक है। इसकी जायदाद भी बहुत ज्यादा है, जिस पर आए दिन कब्जा माफिया के कब्जे जमाने की खबरें ज़ेर गर्दिश रहती हैं। लेकिन इस बार कब्जा माफिया के खिलाफ मुतहरिक हुए हैं मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के चीफ ऑफिसर चौधरी मोहम्मद शफीक। कहते हैं कि खुफिया इत्तला पर करोड़ों रुपए मालियत की कमर्शियल दुकानों की जगह वागुजार करवा ली है। जब मैं अपने ऑफिस में पहुंचा तो मुझे कुछ दोस्तों ने बताया कि सर ऐसे ऐसे हो रहा। फिर हमने मौके पे मैं अपना स्कार्ड लेके वो सारी उसको डिमोलिश कर दी है सारे को। लेकिन उसमें जो लोग कर रहे थे कब्जा वो हमारे सामने फिर नहीं आए, क्योंकि उनके में नाम मजीद जुम्मे लगाया हुआ मुतलका इंस्पेक्टर के, ताकि उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कराई जाएगी। चीफ ऑफिसर चौधरी शफीक का कहना था कि कमर्शियल जगहों पर कार्रवाई खुफिया इत्तला पर की, लेकिन ये काम बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स के इलाकों में हुआ। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की। चीफ ऑफिसर ने बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स की कारकर्दगी पर सवाल निशान भी लगा दिया। बिल्डिंग इंस्पेक्टर पे इतना मैं नहीं कहता कि ये बड़े एफिशिएंट है, क्योंकि कोई इनके पे ऊपर मैं डिपेंड नहीं करता बिल्डिंग इंस्पेक्टर के ऊपर। बिल्डिंग इंस्पेक्टर को पता होना चाहिए, वो तो एक्सक्यूज कर लेते हैं जी, पता नहीं जी हमने देखा नहीं जी, ये रात को काम हुआ, परसों रात को हुआ। भाई रात को हुआ, दिन को हुआ, अगर नजायज हो रहा तो उसको फारग करें आप। अगर आपको किसी किस्म की हेल्प चाहिए तो मैं देता हूं, लेकिन वो मैं इतना नहीं बिलीव करता और ना मैं इतना इनके ऊपर खुश हूं। चौधरी शफीक ने कहा कि मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की जगहों पर ऐसे कब्जे सरकारी मुलाजमीन की मिलीभगत के बगैर मुमकिन नहीं है और वो इस करप्शन के निजाम को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। कैमरामैन फराज अहमद के साथ महमूद जहीद, बहावलपुर।
दूसरी जानिब आपको बताएं कि अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने मुल्तान में मसरूफ दिन गुजारा। सिराजुल हक ने निस्तर अस्पताल, डिस्ट्रिक्ट जेल समेत दीगर मकामात का दौरा किया। में अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने मसरूफ दिन गुजारा। सिराजुल हक एक रोजा दौरे पर मुल्तान पहुंचे तो सबसे पहले इन्होंने दफ्तर जमात इस्लामी में 100 रजाकारों पर मुश्तमिल कोरोना फाइटर फोर्स का इफ्तिताह किया। इस मौके पर सिराजुल हक का कहना था कि मुल्तान की जमात इस्लामी ने जुर्रत और बहादुरी से काम किया है। आज अपने कारकुनों को शाबाश देने मुल्तान आया हूँ। जमात इस्लामी की तरफ से और पूरी कौम की तरफ से शाबाश पेश करने और खराज ताज़ीम और सलाम देने आया। सिराजुल हक ने रेस्क्यू 1112 के दफ्तर का भी दौरा किया, जहां पर रेस्क्यू एहलकारों ने सिराजुल हक को सलामी दी और अफसरान ने कोरोना के हवाले से जारी सरगर्मियों के बारे में आगाह किया। इस मौके पर सिराजुल हक का कहना था कि रेस्क्यू 1112 ने हिम्मत वाला काम किया है। रेस्क्यू 1112 ने सबको मिलाकर शहर को बचाने की कोशिश की। मुल्तान जो औलिया का शहर है, मसाजिद का शहर है, आप लोगों ने इस कौम की खिदमत की है। अल्लाह ताला आप लोगों को अजर खैर अता फरमाए। सिराजुल हक ने निश्तर अस्पताल का भी दौरा किया, जहां पर वाइस चांसलर निश्तर अस्पताल डॉक्टर मुस्तफा कमाल पाशा ने निश्तर अस्पताल की जानिब से किए जाने वाले इकदामात से आगाह किया। सिराजुल हक की जानिब से निश्तर अस्पताल में डॉक्टर्स के लिए 500 N95 मास्क का तोहफा भी दिया गया। सिराजुल हक ने डिस्ट्रिक्ट जेल का दौरा भी किया, जहां पर इन्हें जेल पुलिस की जानिब से सलामी दी गई। सिराजुल हक ने कैदियों के लिए जरूरी सामान भी भिजवाया। सिराजुल हक ने मकामी स्कूल में माजूर अफराद में राशन की तकसीम की। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। और मेंबर पंजाब बार ख्वाजा कैसर भट्ट कहते हैं कि वकला के लिए रिलीफ फंड और मेडिकल फंड की कोशिशें कर रहे हैं। माहिर इमरान की रिपोर्ट देखिए। पंजाब बार कौंसिल ख्वाजा कैसर भट्ट कहते हैं अदालतों में छुट्टियों के बायस वकला माली मुश्किलात का शिकार हैं। उनके लिए रिलीफ फंड का मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने कहा जनवरी से पंजाब बार कौंसिल का इजलास नहीं हुआ। चेयरमैन पंजाब बार को इजलास की रिक्विजिशन भिजवा दी है ताकि फंड का अजरा मुमकिन बनाया जा सके। मैंने पंजाब बार कौंसिल में गफूर शाह साहब के साथ मिलकर एक एप्लीकेशन मूव की, जिसमें हमने 13 करोड़ 20 लाख रुपए की रकम जो है जो पंजाब बार कौंसिल के अपने अकाउंट्स में जो मौजूद है उसकी डिमांड की। ख्वाजा कैसर भट्ट का कहना था कि वकला के लिए 13 करोड़ 20 लाख रुपए जारी करने की तजवीज दी है। 8 लाख तहसील बार और 16 लाख डिस्ट्रिक्ट बार को देने की रिक्विजिशन भी दी गई है। तहसील और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के जरिए इसका जो रिलीफ फंड है पंजाब बार कौंसिल और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से मिलकर इंशाल्लाह ये 20 से 25 करोड़ तक इंशाल्लाह जुमेरात को ये अनाउंस होगा। ख्वाजा कैसर भट्ट का कहना था कि पंजाब बार के अकाउंट में 7 करोड़ 29 लाख मौजूद हैं। सूबा भर में 80 तहसील बार और 38 डिस्ट्रिक्ट बार हैं, जिनके लिए रिलीफ फंड जारी करवाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि मेडिकल रिलीफ फंड जारी करने की तजवीज भी दी गई है, जबकि कोरोना रिलीफ फंड के लिए भी कोशिशें जारी हैं। कैमरामैन आमिर शाह के साथ माहिर इमरान नवाज, रोही, मुल्तान। और ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी रहीमिया खान के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सलेमान ताहिर का कहना है कि मौजूदा इमरजेंसी में तालीम के साथ तलबा का जुड़े रहना जरूरी है। इमरजेंसी में तलीमी अदारे बंद होने की बिना पर तलबा तलीमी सरगर्मियां मुतासिर होने की वजह से सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। तलबा को तलीम के साथ जुड़े रखने के लिए ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। तलबा को बेहतरीन ऑनलाइन लेक्चर रिकॉर्ड, वीडियो लेक्चर और सवाल जवाब के सेशन भी मुतारिफ करवाए गए हैं। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सुलेमान ताहिर का कहना था कि तलीमी मेयार की बेहतरी के लिए पहले प्रोफेसर को ऑनलाइन लेक्चर की तरबियत दी गई और उनके सेशन करवाए गए। हमने बच्चों को LMS के थ्रू, ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू वो सारा लिटरेचर प्रोवाइड कर रहे हैं और हमने उनका लॉस कम करने के लिए टीचर्स को ट्रेनिंग दी है, क्योंकि बच्चों का तैयार होना और टीचर्स का उस सब्जेक्ट पे तैयार होना भी जरूरी था। उनका मजीद कहना था कि पोस्ट ग्रेजुएट तलबा ऑनलाइन तालीम हासिल करने में बेहतर रहे हैं। अंडर ग्रेजुएट तलबा में कमी को महसूस करते हुए लेक्चर और ऑनलाइन सिस्टम में मजीद बेहतरी लाई जा रही है ताकि तलबा का तलीमी साल जाया ना हो। इन हालात में भी बच्चों को साथ लेके चल रहे हैं और बच्चों के मसाइल का हमें अच्छी तरह से अदराक है और इंशाअल्लाह ताला ये जो पोस्ट ग्रेड के बच्चे हैं उनका लॉस कम होगा और जो अंडर ग्रेड के बच्चे हैं वो भी ये नेक्स्ट मंथ में 1 महीने में हम ज्यादा लेक्चर्स लेके कोशिश करेंगे कि उनको कंपनसेट करें। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में तलबा के तलीमी मेयार और तैयारी को जांचने का निजाम भी राइज किया गया है। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि माया नाज क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने स्पोर्ट्स ग्राउंड में लॉकडाउन के मुतासरीन में राशन तकसीम किया।
उनका कहना है कि मुल्तान शहर मेरी टीम मुल्तान सुल्तान का होम ग्राउंड है। मुसीबत के इस घड़ी में मुल्तान के बासियों को नहीं भुला सकता। शाहिद अफरीदी फाउंडेशन की तकसीम के मौके असिस्टेंट कमिश्नर आबदा फरीद और शहजाद महबूब भी मौजूद थे। शाहिद अफरीदी का कहना था कि गुज़िश्ता एक माह से चित्राल, दीर और वजीरस्तान में राशन की तकसीम के हवाले से मसरूफ रहा। डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक से मुल्तान के बहन भाइयों में राशन तकसीम करने की ख्वाहिश का इजहार किया तो उन्होंने एक दिन में इंतजामात करने में मेरी मदद की। शाहिद अफरीदी ने कहा कि राशन की फराहमी का सिलसिला रमजान और इसके बाद भी जारी रहेगा। दुआ है अल्लाह ताला अपने रहमो और करम से पाकिस्तान और पूरी दुनिया से इस वबा का खात्मा करे। बाद 500 मुतासरीन में शाहिद खान अफरीदी फाउंडेशन की तरफ से राशन तकसीम किया गया। लॉकडाउन से मुतासर अफराद की इमदाद का सिलसिला जारी है। जिलाई दफ्तर बैतुल माल में मुस्तहिकीन में चेक तकसीम किए गए। ये रिपोर्ट देखिए। लॉकडाउन के बायस मुतासिर होने वाले मुस्तहिकीन की इमदाद का सिलसिला जारी है। चेक तकसीम करने की तकरीब मुनक्किद हुई। पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात नदीम कुरैशी ने मुस्तहिकीन में चेक तकसीम किए। इन लोगों ने अपना पूरा मैकेनिज्म बनाकर मुस्तहिकीन में माजूर अफराद में ये चेक्स आज दिए हैं। ये बुनियादी तौर पर लोगों की इस मुश्किलात में थोड़ी सी कमी की कोशिश है कि लोग इस प्रॉब्लम में ये समझ लें कि उनकी हुकूमत उनके साथ है। पहले मरले में 200 से ज्यादा मुस्तहिकीन में रकम तकसीम की गई। वाइस चेयरमैन बैतुल माल दानिश खान मलेजई का कहना था कि जांच पड़ताल के बाद ही मुस्तहिकीन में इमदाद तकसीम की जा रही है। इस टाइम हमारे पास कोई 200 समथिंग कुछ चेक तकसीम हो चुके हैं। नेक्स्ट भी हम कर रहे हैं और ये तकरीबन डेली की बुनियाद पर हो रहे हैं। सिर्फ इस वजह से रश नहीं कर रहे कि कोरोना की वजह से। इमदाद मिलने पर मुस्तहिकीन अफराद ने हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ गौहर रहमान, रोही, मुल्तान। और लेजेंड ऑफ पाकिस्तान अताउल्लाह ईसा खैलवी ने फ्रंट लाइन पर काम करने वाले स्टाफ पर गुलपाशी की। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मारूफ गुलकार अताउल्लाह ईसा खैलवी ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मियांवाली में फ्रंट लाइन पर काम करने वाले स्टाफ पर गुलपाशी की। MPA मलिक अहमद खान भुच्चर, डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चट्टा, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हसन असद अलवी भी हमरा थे। अताउल्लाह ईसा खैलवी ने रोहित से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फ्रंट लाइन पर काम करने वाले अफराद खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। मैं तो समझता हूँ कि ये फ्रंट लाइन पे है इस वक्त। अल्लाह ताला इन्हें हिम्मत दे, हौसला दे और अल्लाह ताला नेक अजर दे। ये जिस तरह लड़ रहे हैं मैं इन्हें दाद दे सकता हूँ, दुआ दे सकता हूँ एक बड़े भाई की हैसियत से, बुजुर्ग होने की हैसियत से। तो मेरी दुआएं, मोहब्बतें, मेरे जज्बात इनके साथ हैं। कोरोना वायरस इमरजेंसी के दौरान फराइज मनसबी अदा करने वाले डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और रेस्क्यूज पुलिस एहलकार कौम के हीरो हैं। कौम उनके एहसानात को कभी भी फरामोश नहीं करेगी। यहाँ मियांवाली में हर शोबे में हर इदारे ने अपनी कारकर्दगी बेहतरीन तरीके से दिखाई है। मैं सब इदारों को सलूट करता हूँ, सब इदारों के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह इन्हें सलामत रखे। अताउल्लाह ईसा खैलवी ने DC, DPO और DO रेस्क्यू को भी गुलदस्ते पेश किए। कैमरामैन शराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। आपको बताएं कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और जमात इस्लामी के ताउन से हसनाबाद में ब्लड कैंप का इनेकाद किया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। थैलीसीमिया के मरीजों और एक्सीडेंटल केस में आए मरीजों को खून के एहतियात देने के लिए हसनाबाद में जमात इस्लामी की जानिब से ब्लड कैंप का इनेकाद किया गया। शहरियों ने ब्लड कैंप में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, खून का अतिया किया। जो लोग डोनेट करने के लिए आते हैं उनका वेट किया जाता है कि कम से कम 50 kg या इससे ज्यादा वेट होना चाहिए। फिर एज ग्रुप है 17 साल से 50 साल तक। फिर उनकी मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, उनका ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, पल्स, बुखार, ये सारी चीजें चेक करने के बाद हम उनका HB लेवल चेक करते हैं कि 12.5 या इससे ज्यादा HB लेवल होना चाहिए। ये सारा असेसमेंट क्राइटेरिया पूरा करने के बाद जो उसको मीट करता है फिर उससे ब्लड लिया जाता है। कैंप में खून के एहतियात देने वालों का पहले असेसमेंट टेस्ट किया गया, जिसमें इनका ब्लड प्रेशर, शुगर, वजन और दीगर बीमारियों की जांच की गई। जांच के बाद ही शहरियों को खून का अतिया देने की इजाजत दी गई। खून का अतिया देने वालों का भी कहना था कि ये एक सदका जारिया है, हम सबको इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। ब्लड कैंप रात 9 बजे तक जारी रहेगा। खून देने के लिए आए हैं, इससे थैलीसीमिया के मरीज जो हैं उनको बहुत फायदा होगा और दावत इस्लामी ने हमें ये ज़हन दी है खून देने का और बहुत बड़ी खुशी हो रही है। दूसरों को भी दावत दी है कि थैलीसीमिया के मरीजों के लिए जो है आप खून दें आके। ब्लड कैंप के इंचार्ज सैयद आसिम रजा का कहना था कि हम मुख्तलिफ जगहों पर वक्फे से ब्लड कैंप लगा रहे हैं ताकि जिन मरीजों को खून के एहतियात की जरूरत है इनको वो पहुँच सके। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।